हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा फ्रॉम कैड सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी मार्केट स्टडी? सारे वीडियोस देख रहे हो ना आप? अब तक के सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियोस देखो, क्योंकि ये सारे वीडियोस आप ही के लिए बने हैं। इस सारे वीडियो से आपको पता चलेगा कि जॉब की मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर वैकेंसीज आ रही है, या फिर कौन से फील्ड में आपको जॉब मिलेगा। तो ये सब आपको, अगर आप वीडियो देखते हो तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से जल्दी ये सारे वीडियोस देख लो, अब तक के सारे वीडियोस देख लो। तो ये सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो उससे पहले हम हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को। Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustubh Panse, product architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for student, about 500 people have filled a survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation. Right now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews, and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company, but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason, you don't know what will be asked in that interview. So my recommendation is, whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important. Because I have to prepare this video in a short while, I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. It's a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are 3 kinds of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the 3 areas. So all these 3 areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of 2 things. What are these 2 things? These 2 things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है तो इसका मतलब आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हो. तो ये जो फियर है उसके भी पॉइंट आप नोट डाउन करो. जहाँ पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये इसको मेंशन करो. अभी क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उसको वैसे ही मत छोड़ो, वेरीफाई करो. देखो उसमें कोई असाइनमेंट सॉल्व करके, कैड सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या, अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना. अभी जहां पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए. मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए. या सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द बिजनेस. ओके, अब आपको पता चला कि ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, क्या मिलेगा इस वीडियो को देख के. तो
इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना आप थोड़ा सा मूव हो जाइए और आपकी पेन और डायरी लेके बैठिए, क्योंकि आपको अब पता चलेगा कि वैकेंसी कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर है, कौन सी ओपनिंग है। तो आपकी पेन और डायरी लेके बैठिए और ये मैं जो बोल रही हूँ वो पॉइंट नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जॉब ओपनिंग से। तो जॉब ओपनिंग है एसोसिएट इंजीनियर की। एसोसिएट इंजीनियर मतलब क्या करते हैं ये? अब ये फर्स्ट टाइम है जो एसोसिएट इंजीनियर की वैकेंसी आई है। अब तक तो ज़्यादा से ज़्यादा तो इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी आई है, या फिर रेविट के ऊपर आई है, आर्किटेक्चर की वैकेंसी आई है, स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी आई है, या फिर प्लेन ड्राफ्ट्समैन की भी वैकेंसी आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी ज़्यादा आई है। तो आज की वैकेंसी है एसोसिएट इंजीनियर की। अब एसोसिएट इंजीनियर मतलब क्या, ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या रहता है? तो एसोसिएट इंजीनियर क्या करते हैं? तो पहला पॉइंट ये है कि डिजाइन वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स एंड एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स, कोऑर्डिनेट विद मैनेजर एंड स्पेशलिस्ट टू प्लान प्रोडक्शन एंड एनालाइज ऑल सैंपल्स फॉर कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब क्या कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जो भी प्लान्स या सैंपल्स लगते हैं, ड्राइंग्स लगते हैं, वो आपको क्या करने पड़ते हैं, डिजाइन करने पड़ते हैं। देन इवेल्युएट दोज ड्राइंग्स, डिजाइंस ऑफ वेंडर्स एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू साइट इंजीनियर। अब सिर्फ डिज़ाइन लेके कुछ होगा क्या? डिज़ाइन करके कुछ नहीं होगा। डिज़ाइन करके आपको वो साइट इंजीनियर से क्या करना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा। देन असिस्ट टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्लान्स एंड एसोसिएट डिज़ाइन शीट्स एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू टेक्निकल स्टाफ एट ऑल टाइम्स। Then analyze projects and estimate all requirement and project cost and analyze same with all infrastructure फंडिंग ग्रांट्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर ऑल प्रोजेक्ट फाइनेंसेस। मतलब क्या कि आपको प्रोजेक्ट का एनालाइज करना पड़ेगा, एस्टिमेशन करना पड़ेगा, आपका जो टेक्निकल स्टाफ होगा उनके साथ बैठ के आपको ये प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब जो है वो कौन करता है? एसोसिएट इंजीनियर करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ कि एसोसिएट इंजीनियर क्या करता है कि आपके जो साइट इंजीनियर है उनके साथ आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, उनके साथ आपको रिकमेंड करना पड़ता है, आपको ड्राइंग्स प्रिपेयर करनी पड़ती है, आपके जो टेक्निकल स्टाफ है उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, प्लस एस्टिमेशन भी करना पड़ता है और स्ट्रक्चर का डिज़ाइन भी करना पड़ता है। तो ये सब जो है वो एसोसिएट इंजीनियर का वर्क रहता है। अब वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से आई है? तो कंपनी का नाम है टेक्नोकॉम इंजीनियरिंग। अब ये टेक्नोकॉम इंजीनियरिंग क्या है, कौन सी कंपनी है? तो इनकी वेबसाइट जो है यहाँ पे मैंने ऐड की है, तो उनके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी वेबसाइट की लिंक मैंने ऐड की है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, आप ये कंपनी का स्टडी कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर नहीं जाना तो उसके लिए मैं भी एक बताती हूँ कि टेक्नोकॉम कंपनी क्या क्या करती है। तो वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्लांट इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, स्टील डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब स्टील डिटेलिंग एंड डिजाइनिंग मतलब क्या? ऑब्वियसली स्टील का काम रहेगा तो स्ट्रक्चर का काम रहेगा। तो ये सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। लोकेशन कहाँ पे? पौंड रोड, पुणे। तो पुणे का लोकेशन है। अब मैंने यहाँ पे इनका एक प्रोजेक्ट ऐड किया है जो इंडस्ट्री वर्टिकल ऑटोमेटिव, लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका। मतलब ये नॉर्थ अमेरिका का प्रोजेक्ट है। तो आपको पता चला अब नॉर्थ अमेरिका का प्रोजेक्ट मतलब क्या है, इंटरनेशनल कंपनी है। तो अगर आपको इस कंपनी में प्लेस होना है तो जल्दी से जल्दी इनके एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करो। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी देखते हैं। पहले तो हम इनका एक स्क्रीनशॉट देखते हैं जो इन कंपनी की तरफ से आया था। तो स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल स्टडी कर सकते हो। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है आपको इस कंपनी में प्लेस होने के लिए? तो एक्सपेक्टेशंस है नॉलेज ऑफ ऑटोकैड एंड रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। बाप रे, अब रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर क्या है? ऑटोकैड तो बेसिक है। अब आपको पता चला होगा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, इतने सारे वीडियोस में ऑटोकैड का वीडियो दिया है मैंने, ऑटोकैड के बारे में बोला है मैंने, फिर भी एक बार बताती हूँ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है। तो चलिए देखते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का एक वीडियो। So I provide drafting services for interior designers. I find AutoCAD to be one of the most favorite tasks that I do. AutoCAD is one of the most versatile tools. I find it very intuitive and very helpful and very easy to get the job done. AutoCAD is the most important program. It's like a common language. ओके, अब रेविट स्ट्रक्चर क्या है? तो रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है।
स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ईटैब्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, देन आरसीसी डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, और एक है रेविट स्ट्रक्चर। अब रेविट स्ट्रक्चर जो है, रेविट के 3 सॉफ्टवेयर है, जैसे कि रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर्स है एंड रेविट MEP है। अब उसमें जो रेविट स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या कर सकते हो आप, स्ट्रक्चर का डिटेलिंग डिज़ाइन कर सकते हो आप, मतलब कॉलम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कॉलम का एस्टिमेशन आप, मटेरियल का एस्टिमेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। देन आप पूरा डिटेलिंग जो है आरसीसी का, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको पता नहीं है रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हो, आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं आते और आपको इस कंपनी में प्लेस होना है, तो ये पहले तो ये सॉफ्टवेयर सीख लो। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे सीखोगे आप, तो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म लाया है, वो है डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी करके। अब डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म क्या है, उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म जो है, वो मोर देन 400 GB प्लस डेटा है उसमें। तो इतना डेटा जो है वो किसके रिगार्डिंग है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है। मतलब उसमें सारे कोर्सेस ऐड है, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स के कोर्सेस ऐड है, सॉफ्टवेयर कोर्सेस, मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर कोर्सेस है, इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर कोर्सेस ऐड है उसमें। प्लस आप स्पेस डिजाइनिंग भी वहाँ से सीख सकते हो, और वास्तुशास्त्र का भी एक कोर्स है, वो भी वहाँ से आप सीख सकते हो। अब ये तो हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में, या फिर कुछ स्पेस डिजाइन, वास्तुशास्त्र, इंटीरियर के बारे में हो गया। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर आके कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। जैसे एक्स्ट्रा प्रिपेयर मतलब क्या, जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ये सब कैसे इंप्रूव करोगे आप, तो उसके लिए भी हमने यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म में एक सेक्शन ऐड किया है। जैसे कि अगर आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखना है, तो वो कहाँ पे जाके सीखोगे आप, स्पेस डिजाइन में जाके, मॉडलिंग फंडामेंटल्स में जाके आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। सेम एज रेविट सॉफ्टवेयर भी आप सीख सकते हो। इन पर्सनल स्किल्स मतलब क्या, जैसे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कंपनी जो है इंटरनेशनल कंपनी है, क्लाइंट जो है नॉर्थ अमेरिका का प्रोजेक्ट है उनका, ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्लाइंट के साथ आपको क्या करना है, डील करना है, आपके कलीग्स के साथ आपको क्या करना है, बात करनी है, उनके रिक्वायरमेंट समझनी है आपको, आपकी जो बात है वो उनके पास पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए क्या रहता है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, तो आप सामने वाले का पॉइंट समझ नहीं सकते, या फिर आपका पॉइंट उन्हें समझा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन कैसे एक्सीलेंट करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमने यूनिवर्सिटी में ऐड किया है सेक्शन, जो है स्किल अप सेक्शन। तो स्किल अप सेक्शन में जाके 5 इजी स्टेप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इस सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हो, आपकी इंग्लिश एक्सीलेंट कर सकते हो। वैसे ही सेम इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स, ये भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। आपको सब आता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में जाते समय आपका रिज्यूमे कैसे हो रहना चाहिए, या फिर ड्रेसिंग कैसी रहनी चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन कैसा देना चाहिए, अगर ये सब आपको पता नहीं है, तो उसके लिए भी हमने स्किल अप सेक्शन में इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स का एक सेक्शन ऐड किया है। वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। तो वहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हो आपके सारे स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स प्लस सेल्फ स्किल्स जो है वो आप इंप्रूव कर सकते हो यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करके। तो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो और ये सारे स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करो। तो इसके लिए क्या किया, मैंने यूनिवर्सिटी का एक स्क्रीनशॉट दिया है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है, इसमें सिविल कोर्सेस है, देन स्पेस डिजाइनिंग के कोर्सेस है, रेविट स्ट्रक्चर का आप देख सकते हैं, रेविट प्रोजेक्ट है, एक बेडरूम हाउस जो है वो रेविट में प्रोजेक्ट बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आप यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करते हो तो ये सारे कोर्सेज सीख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो, आप सारे सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी इस दिए गए नंबर पर कॉल करो, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कॉल करो हमें, और आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो जल्दी से जल्दी ग्रैब करो। थैंक यू, बाय।